Hello everyone. Today our topic is thermogravimetric analysis. My name is Vanshika and this is my assignment of MSc Chemistry second sem. So I thought of to share this with you all as well. So our topic is thermogravimetric analysis. From the name we can see that there is something related to the temperature and from gravimetric we can think about weight since weight is related to gravity. W is equal to mg, right? So first we will talk about thermal analysis. What do you mean by thermal analysis? Thermal analysis are there is some change in physical property of the system. From the system we can say about our sample and something like that. Some physical property which can be taken as the function of temperature. Okay. Then this हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें मैटर को हीट अप करते हैं। हीट अप करते हैं तो कुछ उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल से हम कह सकते हैं कि उसकी स्टेट चेंज हो जाना, जिसकी वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। ओके, एंड फ्रॉम केमिकल चेंजेस वी कैन से अबाउट it can undergo decomposition and some other chemical reaction. So here there is some limitation about this topic is this technique is it can only used for analysis of solid substances. So we need only solid samples. What are the types of the thermal analysis? In the thermal analysis, there are three types: thermogravimetric, differential thermal analysis, and the next one is differential scanning calorimetry. Today we will mainly talk about thermal gravimetric, which involve change in mass. So let's see. Now is the definition of the thermogravimetry. What do you mean thermogravimetry? Thermogravimetry, it is a technique where weight of a substance in an environment, heated or cooled at a controlled rate, is recorded as a function of time or temperature. Here the main focus is the at a controlled rate. हम किसी भी चीज़ को हीट कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल रेट पर कर रहे हैं ना। हम अचानक से उसका जो हीटिंग है मतलब टेम्परेचर हम अचानक से ना इंक्रीज करें ना अचानक से हम डिक्रीज करें। हम उसको कांस्टेंट रेट पर हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं और कांस्टेंट रेट पर ही कर रहे हैं सब कुछ। ओके, हम उसका जो वेट है उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और टेम्परेचर, मेनली हम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर के ऐसे लेके चलेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज टीजे कर्व ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये एक ग्राफ है जो मैंने लिया है एज ए एग्जाम्पल। हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि हमारा जो ए बी कर्व है, ए बी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। वी कैन सी इट मीन्स देर इज नो चेंज इन द वेट, राइट? एंड in the CD it is almost straight and we can see that there is no change in the weight as well. But in the BC line, BC curve, sorry, BC curve, we can see that there is a sudden decrease in the weight, and this decrease in the weight sometimes it is due to, actually in the various cases it is due to water gets evaporated, that is why. But in this case this is due to decomposition. Silver nitrate gets converted into silver and NO2 and oxygen, and we can see that it is during about 473 degrees Celsius, right, when it start decreasing, and it is a constant around 500. It becomes constant around 500. So this 473 is the procedural decomposition temperature. We can discuss about this in the next video. तो अब आता है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचे कर्व। तो हम क्या करते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट से हम एनालाइज तो करवा लेते हैं हमारा सैंपल, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है उस इंफॉर्मेशन को जो हमें मिलती है हम उसको कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, कितना हम उसमें से समझ पाते हैं। तो हम बेसिकली सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, हमारे जो ग्राफ है उसमें कि हमारा कंपाउंड है, हमारा जो सैंपल है वो कितना स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल हम कोफ की बात करते हैं, मोफ की बात करते हैं। कोफ मीन्स कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो थोड़ा कम स्टेबल है। इट इज़ अराउंड 300 to 400 डिग्री सेल्सियस। अब ये प्रॉब्लम आती है कि वो हम उसको कितना स्टेबल
उसके स्टेबिलिटी का इश्यू है, हम वो सब क्या कैसे देख पाते हैं, वो हम टीजे कर्व के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो कंपाउंड था सिल्वर नाइट्रेट, हमारा वो 473 डिग्री सेल्सियस तक वो हमारा स्टेबल था। उसके बाद वो डिकम्पोजिशन उसका शुरू हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम 473 डिग्री सेल्सियस तक वो स्टेबल है, तो हम उसको सिल्वर नाइट्रेट को हम उस कंडीशन पर यूज कर सकते हैं, उस सिस्टम हम उस जगह यूज कर सकते हैं जहां पर उसका टेम्परेचर 473 से कम हो उस रिएक्शन का, ताकि हम सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज ना हो। सो नेक्स्ट इज द प्रोसीजर decomposition temperature. It is the lowest temperature at which weight change is seen. Weight change, it is the, in this case it is 473 degrees Celsius. And final temperature, maximum temperature we can say, uh, after that our weight change is becomes constant. Weight change is zero. There is no change in the weight. In this case it is around 500 degrees Celsius. And the reaction interval, the difference between this temperature, these two temperature, is taken as reaction interval. These temperature ranges are the physical properties of chemical compound and can be used for their identification. For example, in case अगर हमारे सैंपल में वाटर होता तो वो अराउंड हमें उसका जो डिक्रीज है, सडन डिक्रीज हमें अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के पास देखने को मिलता, क्योंकि हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन में मेन हमारी आती है फर्नेस जिसके अंदर हम हमारे सैंपल को गर्म करेंगे, मतलब उसको हीट करेंगे, राइट। एंड सैंपल होल्डर इन विच वी विल कीप अवर सैंपल। Next is the recording balance, which will record our sample temperature and weight. And one is the temperature sensor, how much temperature is in the sample. We will discuss in detail. The first one is the sample holder. Sample holder is the geometry size material of the sample holder have important effect on the shape of the TGA curve. Material of the sample can be glass, quartz, alumina, stainless steel and platinum depending on the temperature and how much temperature, उसके बेसिस पे हम हमारे सैंपल का होल्डर डिसाइड करते हैं, उसके मटेरियल का। these are the for example these are some picture these are the picture of some sample holder we use for the TGA curve. Next one is the recording balance. Recording balance. Good balance must fulfill following requirements. Recording balance क्या करता है, हमारा वेट को मेजर करता है एक्यूरेसी के साथ। हम सबसे पहले चाहेंगे एक्यूरेट हो हमारा रिजल्ट। मान लीजिए हम हमारे कर्व को यूज करके हम कोई रिसर्च में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा एक्यूरेट ही नहीं आएगा रिजल्ट, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे में कोई हमने सोचा कि हमने पिरिडिन बनाया, बट ये भी तो हो सकता है हमारा पिरिडिन बना ही ना हो। तो हम उसका रिकॉर्डिंग बैलेंस हमारा शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। कैपेसिटी शुड बी सिमिलर टू दोज ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ वेट चेंजेस, जैसे जैसे हमारा वेट चेंज हो रहा है तो हमारे रैपिड रिस्पॉन्स होना चाहिए उसमें। एंड द लास्ट वन इज द बैलेंस शुड बी सिंपल टू ऑपरेट एंड वर्सेटाइल। सिंपल टू ऑपरेट होना चाहिए, ये ना हो कि बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो। अगर बिल्कुल सिंपल होगा तो बेटर रहेगा, इजी टू हैंडल होगा, राइट। एंड वर्सेटाइल। नेक्स्ट इज द फर्नेस चॉइस ऑफ द फर्नेस, हीटिंग एलिमेंट एंड टाइप ऑफ द फर्नेस। फर्नेस हमारे दो टाइप की होती है, लो मास फर्नेस एंड हाई मास फर्नेस। उसका हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम 1100 डिग्री सेल्सियस के लिए हम फर्नाइक्रोम यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट। फॉर टेम्परेचर 1100 टू 1500 डिग्री सेल्सियस हम प्लेटिनम यूज करते हैं, प्लेटिनम है उसका एलॉय रोडियम के साथ। और अगर हम बात करें 1700 डिग्री सेल्सियस की तो हम टंगस्टन या मोलिब्डेनम यूज करते हैं। ये सब उसके जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। लो मास फर्नेस एंड हाई मास फर्नेस। लो मास फर्नेस जो होती है वो बहुत जल्दी कूल होती है। हम
आप एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें, लो मास फर्नेस और हाई मास फर्नेस को आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि आपने पानी गर्म किया, आपने एक पानी गर्म किया छोटी सी कटोरी में, और एक आपने पानी गर्म किया बड़े बाउल के अंदर, बल्क में, और आपने कटोरी के अंदर किया थोड़ा सा पानी गर्म। तो आप क्या देखोगे उसमें कि जो लो मास फर्नेस है हमारी, वो बहुत जल्दी कूल हो सकती है, और उसका जो टेम्परेचर लीनियर, हमारा जो वो होगा बाउल का, अगर हमारी कटोरी जो है वो उसका साइज छोटा है तो वो इजिली इंक्रीज कर जाएगा उसका टेम्परेचर, लीनियर टेम्परेचर नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल होगा हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने में। लेकिन अगर हाई मास फर्नेस की बात करें तो उसमें मोर टाइम, हमें उसको ज़्यादा टाइम चाहिए उसको गर्म होने के लिए, क्योंकि वो बल्क में होगा, बड़ी होगी फर्नेस, राइट। तो और उसको हम आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमें बहुत इजीली मिल सकता है। ये इसकी एडवांटेज है हाई मास फर्नेस की, लो मास फर्नेस की। ये आप कह सकते हो ये एक डिसएडवांटेज भी है, और ये जनरली इसलिए हाई मास फर्नेस यूज की जाती है कभी कभार। अब टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करें तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोकपल यूज करते हैं। थर्मोकपल क्या है? इट इज अ सेंसर डेट मेजर टेम्परेचर। तो अब क्या है, थर्मोकपल की जो पोजीशन होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारा टेम्परेचर ही डिफरेंट होगा एक्चुअल सैंपल से, तो इट इज अ बिग ब्लंडर, इट इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। So first, in the first case, you can see the thermocouple is near the sample container. It has no contact with the sample container, and it is near, not in contact. The next one is the thermocouple is in the sample holder, inside the sample holder, but not in contact with the sample. And the third one is, you can see that thermocouple is either in contact with sample or with the sample container. From all these three, we can see that C part will give us right information, correct information as compared to A or B. Next one is recorder. Recorder. It is an automatic recording unit with for mass and temperature. In most of the cases, mode of the recording data is weight change versus temperature or time. Or sometimes we use percentage mass. Percentage mass change is comparatively better as compared to the weight change, क्योंकि हम, हो सकता है मैंने अपने सैंपल का किया हो 5 वेट के अकॉर्डिंग, 5 ग्राम के अकॉर्डिंग हमारे सैंपल मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हो, लेकिन हो सकता है मैं नेक्स्ट डे या 2 साल बाद उसी सैंपल का वे करूं, टीजे कर्व करवाऊं, लेकिन 2 ग्राम के साथ। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो डाटा वो बहुत अलग आएगा, इसलिए हम परसेंटेज वेट प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू वेट चेंज। Next one is thermobalance. Thermobalance should be continuous. Weight changes of the sample as a function of temperature and weight. वो हमें वो thermobalance को continuous weight change को sense करना चाहिए, और वो weight changes को as a function of temperature और time ले सके, कोई discontinuity नहीं होनी चाहिए। The temperature recorded to an accuracy of better than plus minus 1% मीन्स जो हमारा जो एरर हो बहुत कम होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी आइडियल टू द सैंपल टेम्परेचर। हमारा जो, हमने थर्मोकपल के अंदर भी यही देखा था कि जो हमारा सैंपल है वो, जो हमारा जो थर्मोकपल है वो शुड बी इन द कॉन्टेक्ट विद द सैंपल होल्डर, और सैंपल के जितना सैंपल के साथ कॉन्टेक्ट में होगा या सैंपल होल्डर कॉन्टेक्ट में होगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आ सकता है। और हम उसको आइडियली मान लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट का आना मुश्किल है, लेकिन उसको हम आइडियली मान सके, इतना एग्जैक्ट आ सके उतना बेटर होगा। नो केमिकल अटैक ऑफ वोलेटाइल प्रोडक्ट्स ऑन द apparatus। हमारा जो वोलेटाइल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, बनते हैं कुछ, लेकिन उसका हमारे अपैरेटस के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बैलेंस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फर्नेस। हमारे इस बैलेंस को बहुत सेंसिटिव होता है, इसको इसे फर्नेस से थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। वेट शुड बी रिकॉर्डेड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1%। हमारा जो वेट लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी 1 ± 1%। हम जो
काम करते हैं उसमें जितनी भी रिसर्चेज होती है उसमें जितना कम एरर हो उतना बेटर होगा। हम एग्जैक्ट चाहते हैं लेकिन हमें पता है कि कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ह्यूमन एरर, कहीं ना कहीं कुछ एरर तो होता है। तो हमारा 100% एक्यूरेट रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमारा 1% भी हम देखा जाए तो बहुत कम एरर माना जाता है। तो एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस में फर्स्ट आती है इवेल्यूएशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। Thermogravimeter is used to determine the correct drying temperature of precipitate used in gravimetric analysis. तो हम क्या करते हैं, करेक्ट ड्राइंग टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंपाउंड है, इसको हम यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लिथियम की डिटर्मिनेशन के लिए। बट डोवल एक साइंटिस्ट, इन्होंने मोस्टली काम किया थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में। जितना मैंने रिसर्च किया बुक्स के अंदर, इन्हीं साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया है इसके अंदर, इस टेक्निक के अंदर। तो उन्होंने देखा है कि जो ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इस कंपाउंड की लिथियम की डिटर्मिनेशन के लिए बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टीजीए कर्व इस कंपाउंड का शो करता है कि देयर इज कांस्टेंट डिक्रीज इन वेट। 40 डिग्री सेल्सियस से 947 डिग्री सेल्सियस तक काफी कांस्टेंट कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है हमारी वेट में, वेट डिक्रीज हो रहा है। तो कोई ड्राइंग टेम्परेचर नहीं है हमारा स्पेसिफिक का। ड्राइंग टेम्परेचर मीन्स हमें उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर हमारा कंपाउंड तो हम ड्राई कर ही नहीं सकते। आप कहोगे आप 35 डिग्री सेल्सियस पर भी तो कर सकते हैं, पर 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर कैसे पॉसिबल है? अगर हमारे उस कंपाउंड के अंदर वाटर भी होगा तो भी उसको 100 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए एटलीस्ट टेम्परेचर उसको रिमूव होने के लिए, ड्राई होने के लिए सैंपल को। सो डुवल ने हमें बताया कि इसका कोई ड्राइंग टेम्परेचर नहीं है इस प्रेसिपिटेट का। सो हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमें कंपाउंड को ड्राई करने के लिए कुछ मिनिमम टेम्परेचर तो चाहिए। नेक्स्ट इज द क्यूरी पॉइंट डिटर्मिनेशन। तो मेन पॉइंट आता है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट। वो होता भी क्या है? जब हमें पता होगा क्या चीज क्या है तभी हम उसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर या क्या होता है, टेम्परेचर अबव विच मटेरियल लूजेस देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर उसके बाद वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी लूज कर देते परमानेंटली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लार्ज परमानेंट मैग्नेट हम सैंपल होल्डर के नीचे कर देते हैं। ये हमारा थर्मोकपल हो गया, ये हमारी फर्नेस है, और ये हमारा मैग्नेट हो गया। तो हम क्या करते हैं, लार्ज मैग्नेट हम सैंपल होल्डर के नीचे रखते हैं, नीचे सेट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अगर हमारा कंपाउंड मैग्नेटिक है तो वो अट्रैक्ट होगा हमारे सैंपल के साथ, और जितना ज्यादा नीचे डाउनवर्ड फोर्स होती है उतना ज्यादा हमारा वेट होगा, क्योंकि W इक्वल टू mg। तो जितनी ज्यादा ग्रेविटी, जितनी ज्यादा फोर्स डाउनवर्ड लगेगी उतना ज्यादा उसका वेट इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या होगा, उसके वेट इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे जैसे हम हीटिंग करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका वेट अचानक से डिक्रीज हो जाएगा। देयर विल बी अपरेंट वेट लॉस, अचानक से उसका काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। अब मेन बात आती है उस टेम्परेचर पे हमारा वेट लॉस क्यों हुआ। वेट लॉस इस कारण हुआ क्योंकि उस टेम्परेचर पे हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारी लूज हो गई। जैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हुई, डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज हो गई। डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज मीन्स वेट डिक्रीज। So this is how we can find about Curie point. And there is something, there is weight loss or gain depending on the TGA furnace design. अब मेन बात आती है, नीचे मैग्नेट रखा तो हमारा तो हमेशा वेट लॉस ही होगा उसके अकॉर्डिंग। तो लेकिन अगर हमारा मैग्नेट सैंपल होल्डर के अबव रख दिया हमने, मैग्नेट so holder is placed this at this position, then what will happen, then there will be less downward force, and this means there will be sudden increase in the weight after Curie point. Now this is the Curie temperature for nickel is 358 degrees Celsius. This is the graph. Ignore the green part. This is the differential gravimetric analysis. तो हम बात करते हैं ब्लू पार्ट की।
प्लीज ब्लू पार्ट पर ही फोकस कीजिए। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा ये 358 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, देर इज अ सडन डिक्रीज इन वेट। यू कैन सी दिस, देर इज अ शार्प change in weight. This is due to Curie temperature. At this point, there is a sudden loss in the weight. Next one is the purity of the samples. ये कुछ रिसर्चेस हैं जो न्यूकिर के टेक्निक की थी और उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। न्यूकिक ने क्या किया कि उन्होंने एक इम्प्योर सैंपल का टीजे कर्व किया कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो उन्होंने देखा कि एक अनयूजुअल वेट लॉस है 100 डिग्री सेल्सियस के बिलो में। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की तो पता चला कि वो किसी वाटर के कारण नहीं है, वो कुछ इम्प्योरिटीज है सैंपल में, इसके कारण है। अगर हमारा टेम्परेचर हमारा ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे हमारा वेट लॉस हुआ, अगर अगर अब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी होता, अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे वेट लॉस होता तो हम एक पॉसिबिलिटी कह सकते हैं कि वाटर के कारण है। लेकिन जैसे ही हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे हमारा वेट लॉस हुआ, हम क्लियरली कट कह सकते हैं कि वाटर के कारण नहीं है, किसी और इम्प्योरिटीज के कारण है। केटेक, ऐसे ही केटेक ने क्या किया, उन्होंने काफी सारे क्विकलाइम के सैंपल्स का टीजे कर्व किया। उन्होंने देखा कि हर एक के अंदर वेट लॉस है वाटर के कारण और कुछ डिकम्पोजिशन के कारण, और जो हमारा जो रेजिड्यू है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका कोई भी वेट चेंज नहीं आता अप टू 1300 डिग्री सेल्सियस की तक। बट कि एक सैंपल के अंदर उन्होंने देखा कि हमारा जो वेट लॉस है वो 1080 डिग्री सेल्सियस के अराउंड उन्हें एक वेट लॉस नजर आया। और फर्दर टेक्निक्स के कारण उन्होंने कंक्लूड किया कि वो किसी कैल्शियम सल्फेट के कारण था। कैल्शियम, हमारा जो सैंपल था उसमें कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट था, जिसके कारण ये वेट लॉस नजर आया। कुछ अदर एप्लीकेशंस भी है, मैंने सभी एप्लीकेशंस इस पीपीटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया। आप और भी डिटेल के अंदर जाके देख सकते हैं, मैंने रेफरेंसेस डालने हैं। मैंने मेनली बुक GR चटवाल की बुक यूज़ की है। टीजे कर्व, टीजे जो एनालिसिस है वो सेरेमिक्स के लिए काफ़ी यूज़ होता है, सेरेमिक्स के लिए और पॉलीमर्स के लिए। पॉलीमर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है टीजे कर्व। इन ओवरव्यू थर्मल एनालिसिस टेस्टिंग होती है, कुछ हम करवाते हैं, अननोन सैंपल की करवाते हैं। जैसे फार्माक्यूटिकल के अंदर हमारी कुछ मेडिसिन पे लेबलिंग होती है कि स्टोर बिलो दिस टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, मेनली 30 डिग्री सेल्सियस के होता है, उससे कम टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर कीजिए ड्राई एरिया में। वो मेनली क्यों होता है, वो टेम्परेचर इसलिए दिया होता है क्योंकि जो हमारे जो कंपाउंड है, जो हमारी जो टैबलेट है, मेडिसिन है, वो उस कंपाउंड उस टेम्परेचर तक स्टेबल है, और उससे थोड़ा सा रफली अबाउट 15-20 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने वो वार्निंग दी होती है। हम इसको प्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं हमारा सैंपल कितना प्योर है, स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, और कुछ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और रिसर्च के अंदर तो ये मेनली होता ही है आजकल। अगर आप पेपर भी पब्लिश करवाते हो तो उसमें एज अ हम टीजे कर्व का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ एविडेंस के लिए। नेक्स्ट इज द रेफरेंस। सो मैं बता रही थी जैसे आपको, मैंने GR चिटवल, गुरदीप आर चिटवल की बुक काफ़ी यूज़ की इस बुक इसके अंदर। एंड मैंने कुछ ये प्रेजेंटेशंस और कुछ इंफॉर्मेशन अदर साइट से भी ली है। ओके, थैंक यू।